مسلم بچی لباس نہیں پہن سکتی, حجاب نہیں کر سکتی. خیر, میں حجاب پہ بات نہیں کروں گا, پہلے اس پر بات کروں گا. کیا ہندوستان کی لڑکی کو, عورت کو اپنے پسند کا لباس پہننے کا حق نہیں ہے؟ یہاں پر بھی لڑکیاں ہیں, ہماری عزتدار بہنیں کھڑی ہیں, پولیس میں ہیں, وہ جو چاہے پہن سکتی, جو چاہے پہن سکتی, ان کا اختیار ہے. کیونکہ ہمارا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی بھی خدا کو مان سکتے ہیں, کچھ بھی کھا سکتے ہیں, کچھ بھی پہن سکتے ہیں. ہے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو کچھ بھی کپڑا نہیں پہنتے, وہ اللہ یا بھگوان کو بس اتنا یاد کرتے کہ ان کو ہوش نہیں رہتا, ان کو ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی ہے کہ کپڑے کی. ارے ہر ایک کو حق ہے. جس طریقے سے یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی اپنے پسند کا لباس پہن کر چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنے کا حق ہے, اسی طریقے سے ہندوستان کی عورت کو بھی برقع پہننے کا حق ہے. بچیوں کی پڑھائی کی بات کرے, لڑکیوں کی پڑھائی کی بات کرے, اور آج لڑکیوں کو ان کے تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے. کیا یہ انصاف ہے؟ اس ناانصافی پہ آواز اٹھاتا ہوں تو میں فرقہ پرست کہلاتا ہوں. جس طریقے سے ہر ہندوستانی کو اپنے پسند کے کپڑے پہننے کا اختیار ہے, ویسے ہی مسلم بچی کو بھی اپنے پسند کے کپڑے پہننے کا حق ہے, اختیار ہے. ہم کو خوشی ہوتی ہے, ہم کو خوشی ہوتی ہے جب ہم سادھو سنت کو اپنا لباس پہن کر ایوانوں میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم کو خوشی ہوتی ہے جب مسلمان کو چہرے پہ داڑھی اور سر پر ٹوپی پہن کر ایوانوں میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے ہم کو خوشی ہوتی ہے جب ایک انگریز پادری اپنا لباس پہنتا ہے. ہم کو خوشی ہوتی ہے جب کرسچین نن اپنا سفید لباس پہنتی ہے, وہ بالوں کو چھپا کر وہ جھبا پہنتی ہے. ہم کو خوشی ہوتی ہے جب ایک مسلمان برقع بھی پہنتی ہے. لیکن آج معصوم ذہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے. کس طریقے سے اسکولوں کے سامنے تماشا ڈرایا گیا, دھمکایا گیا. ارے میں اس دارالسلام سے سلام کرتا ہوں اس ہمتدار بیٹی و بہن کو جس نے اتنے بڑے جھنڈ کے سامنے بھی کھڑے ہو کر نعرے تکبیر اللہ اکبر کہا. ہم کو ناز ہے, فخر ہے. یہی تو خوبصورتی ہے اس ملک کی, یہی تو حسن ہے اس ملک کا. دستور اجازت دیتا ہے ہندو کو بھی, دستور اجازت دیتا ہے مسلمان کو بھی, دستور اجازت دیتا ہے سکھ کو بھی, دستور اجازت دیتا ہے عیسائی کو بھی. لیکن آج یہ لوگ ہندوستان کی یکجہتی, ہندوستان کی آپسی محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی بڑے دھوم سے نکلے گا ان لوگوں کا بھی جنازہ. ہندوستان کی عوام ضرور نفرت پھیلانے والوں کو سبق سکھائے گی. ہندوستان کی عوام ضرور ان کو شکست دے گی, اور ایسے
लोगों से हमारे मुल्क को आज हमको दस्तूरी व जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए इनका मुकाबला करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और हम ये मुकाबला सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारों से नहीं कर सकते। ये मुकाबला हमको करना है तो जमहूरी अंदाज में दस्तूरी जिद्दोजहद के हिस्सेदार बनते हुए अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजकर इन कानून के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपने नुमाइंदों को ऐवान में भेजना जरूरी है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि मजलिस खाइफ हो जाएगी, नहीं मेरे भाई, मजलिस डरने वालों की जमात नहीं, मजलिस घबराने वालों की जमात नहीं। ना फख्र मिल्लत घबराए, ना सालार मिल्लत घबराए, ना नकीब मिल्लत घबराए, ना अकबर ओवैसी घबराया। हम किसी से डरने या घबराने वालों में से नहीं है। फख्र मिल्लत को जेल में डाला लेकिन वो डरे और घबराए नहीं। सालार मिल्लत को 14 मरतबा जेलों में डाला गया लेकिन वो डरे या घबराए नहीं। पुलिस की जरिए उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी सालार पर भी, लेकिन वो डरे या घबराए नहीं। और मुझ पर गोलियां मारी गई, जरब लगे, दवाखाने में था, लेकिन डरा नहीं, घबराया नहीं, उठ के खड़ा हुआ और उठ के अपने खिताब के जरिए हिंदुस्तान को हिला दिया और बता दिया कि डरने वाला नहीं हूं, घबराने वाला नहीं हूं। और आज अगर कोई समझ रहा है, अगर आज कोई समझ रहा है कि मेरे सदर पर गोलियां चलाकर तुम मेरे सदर को डरा दोगे या मजलिस डर जाएगी तो या ये डर जाएंगे, अरे अहमको, नादानो, ये गोलियों से तो हमारा बहुत बड़ा पुराना रिश्ता है। अल्लाह अगर इस सरजमीन को जबान देगा तो ये गवाही देंगी गोलियों और हथियारों से हमारी निस्बत की। ये जमीन गवाही देगी। ये अब का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है, डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हां, ये जरूर कहूंगा, खुदारा इस बात को समझो, हमारे दुश्मन आज हमको खत्म करना चाहता है। तो क्यों खत्म करना चाहता है? वो आपकी आवाज को खत्म करना चाहता है। हमको खत्म करके वो समझ रहा है कि आपकी आवाज खत्म हो जाएगी। कल को असदुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, अकबरुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, रोजे क़यामत तक ये दारुस्सलाम आबाद रहेगा और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जिंदा रहेगी। आज अकबर ओवैसी नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। अल्लाह का काम शख्सियत का मोहताज नहीं है, वो रुकने वाला नहीं है। हम भी जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे तो अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन साफ जाहिर होता है, साफ जाहिर होता है कि कौन पैसों की इमदाद का ऐलान करे, कौन वो गोलियां चलाने वालों को मदद का ऐलान करे, कौन उनके घर को जाकर मिले। वाह, खुदा ना खास्ता गोली कहीं और चलती और अकबरुद्दीन ओवैसी उन चलाने वालों के घर चला जाता तो क्या यह मीडिया ऐसी खामोश रहती? यही है, यही तो शिकवा है, यही तो शिकायत है, यही तो लड़ाई है कि तुम हमको एक नजर से देखते हो और उनको एक नजर से देखते हो।
जिस नजर से तुम मोदी को देखते हो उसी नजर से ओवैसी को भी देखो। जिस नजर से तुम गांधी को देखते हो उसी नजर से ओवैसी को देखो। यही हमारा मुतालिबा। हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। हमारा भी उतना ही हक है इस मुल्क पे जितना दूसरों का। इस मुल्क के हिफाजत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए अगर हमारी जान भी देनी पड़ी और गर्दनों को काटना पड़े तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हिंदुस्तान का मुसलमान हंसते हंसते अपने सीनों को और गर्दनों को पेश कर देगा, लेकिन इस मुल्क को कभी कमजोर होने नहीं देगा। हम इस मुल्क के वफादार हैं। लेकिन आज हर कोई, आप समझ रहे हैं, ये पार्टी वो पार्टी, सेक्युलर पार्टी फलां पार्टी। मेरे भाई, फिरका परस्ती का जहर इतना घोल दिया गया है कि आज मुसलमान का वोट तो सबको होना है, लेकिन मुसलमान की बात किसी को नहीं करना है। यह है हकीकत है। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में किसी के मैनिफेस्टो में, किसी के तकरीर में, किसी के जुमलों में कोई एक बात हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत की आप सुने? सेक्युलर जमातों से सुने? सेक्युलर पार्टियों के लीडरों से सुने? नहीं। क्यों? उनको डर है हम इनकी बात करेंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। हमको तो बस यही है कि हम तो मजलूम की बात करेंगे, हम तो जिसका हक छीना गया उसकी बात करेंगे, हम तो सब्ज गुम्मत की बात करेंगे, वालों की बात करेंगे। अगर हम उनकी बात नहीं करेंगे तो हमारा ईमान कहता है कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। इनको किसी और की नाराजगी की फिक्र है, हमको अल्लाह की नाराजगी की फिक्र।